Hello everyone, welcome back to the class of Sachin, Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with the new video, and in this video we're going to talk about the new point from your chapter, magnetism and matter. Today's class is all about the different kinds of material. Number 1 is paramagnetic material, number 2 is diamagnetic material, and number 3 is ferromagnetic material. What happens is that the behavior of magnetic material is different when you are applying some magnetic field to the material, and accordingly these are classified into three main categories, and they are paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. So before I start my class, I have to recall the previous one. In the previous videos of this channel, we were discussing about magnetization and magnetic intensity, where we found that both magnetization as well as magnetic intensity are a type of current. One who develops the property of magnetic field onto the normal magnet is called magnetic intensity, and the phenomena of the conversion from normal material to the magnetic material is called magnetization. We have found that the relation of magnetization as well as magnetic intensity is M is equal to sky mh, where sky m is basically your magnetic susceptibility. We have also studied that magnetization is directly equals to the number of bound current per unit length, as well as capital H is free current per unit length, and also the relation between B, M and H was like that: B upon mu naught minus M is equal to H, and at last we have derived that B is equal to mu into H. So any one of you want to learn those concepts, want to learn those derivations, just go to the YouTube search box, just write Sachin Sir Physics, easily you will get my channel, subscribe to it, and then you'll see there is a playlist. Go for that playlist, you will see one by one all the chapters, one by one all the portions of this chapter as well as the previous chapters are available. You can watch any videos. Okay, so let's start this class with the first point, which is your paramagnetic material. But before I start my class, I have one wonderful question, because if you are try to think on it, then you will connect yourself with this class. ठीक है, पहले तो आप वो सोच लो, उसका आंसर चलते हैं, उस आंसर के बाद हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे इस क्लास के साथ, बिकॉज फिजिक्स इज़, आई टेल यू, फिजिक्स इज़ वंडरफुल सब्जेक्ट, बहुत ही बेहतरीन सा ये सब्जेक्ट है, और ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, यू विल फॉल इन लव विथ इट. तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ आई एम सेइंग दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ मटीरियल and not a material, but it is actually a magnetic material, then how can you say that this is a magnetic material? सोचिए, अगर हमने कहा कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? आंसर इज सिंपल. इफ इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, देन देयर शुड बी वन वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट which is called MDM, which is called MDM. And dear student, MDM is what? Magnetic dipole moment. If this material is having a magnetic dipole moment, then 100% this is a kind of magnetic material. Now the another question arises, how can we say that there is a magnetic dipole moment? So the answer is, we can say that there is a magnetic dipole moment when the electrons revolutions are in a perfect way. अगर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस मटेरियल के अंदर परफेक्ट वे में है, तो 100% वहाँ पे MDM है. बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गैस, 100% ऑल दिस पोसेस मॉलिक्यूल्स, ये सभी के पास मॉलिक्यूल्स हैं. बट कुछ ऐसे होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रैंडम होगा. then there are some molecules for different substance are in such a way in which the motion of electrons are in a uniform way. So when the motion of electrons are in a uniform way, that means they possess perfect magnetic dipole moment. And when there is not the uniform way of electron motion, we can say there is a random motion of that electron, 100% that is not a perfect material, because they are not having any kind of magnetic dipole moment. Are you getting this point? हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इन सभी के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, सभी के पास मॉलिक्यूल्स है, तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज पार्टिकल्स है. वो दो तरह का मोशन कर सकता है, एक तो वो स्पिन कर सकता है, स्पिन, और दूसरा वो ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर सकता है. तो बेसिकली ये जो MDM है, विच मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट,
orbital motion of the electron. So at last you should remember this sentence, that magnetic dipole moment is actually the sum of spin magnetic moment of electron as well as orbital magnetic moment of the electron. यानी कोई भी मटेरियल अगर उसमें वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है तो 100% उसमें क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एंड इफ यू आर सेइंग दैट देयर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब है कि ये जो सम है इलेक्ट्रॉन का मोशन का सम कौन सा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अपने ही एक्सिस पे घूमना इलेक्ट्रॉन का, और फिर ऑर्बिटल, ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करते हैं. अगर वो रैंडमली है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट जीरो हो गया. बट अगर वो सेट है, एक ही डायरेक्शन में है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका रिवोल्यूशन होते हुए जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो फिर वो फिर क्या है, रैंडम वे में है तो नहीं है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल. बट इफ ऑल दैट मोशंस आर इन अ परफेक्ट वे, इन अ यूनिफॉर्म वे, 100% there is a MDM. All right. So if someone asks how can you say that this is a magnetic material, there is an answer. If that is a magnetic material, there is 100% MDM, magnetic dipole moment. And if there is a magnetic dipole moment, that means 100% there is a spin magnetic moment as well as magnetic moment, orbital magnetic moment. Okay. So according to that motion of electrons in a molecules, there are three main categories: paramagnetic, diamagnetic as well as ferromagnetic material. All these points are written already on the board. अगर आप ये पॉइंट्स को लिखोगे तो आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है. आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आप NCERT टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं. सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने लिखा है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, वन बाय वन सभी की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. सबसे पहले आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल. देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा. When you are keeping this kind of material into the external magnetic field, then it will not oppose that field, but it will accept this field. How this is happening? ये कैसे हो रहा है? तो it is happening because of the arrangement of the molecules, because of the magnetic dipole moment which are present in that material. अब इसके अंदर क्या होता होगा कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, किसे, मुझे नहीं, आपको भी नहीं, किसे देना है, इस मटेरियल को, क्या नाम है उसका, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो रियलिटी में क्या है, देखिए, these are nothing but these lines are external magnetic field and this one is your paramagnetic material. What will happen inside? They will accept this magnetic field lines because externally the direction of magnetic fields are like this, from north to south. And what will happen inside? This will behave like south and this will behave like a north. इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो सेट कर रहा है, वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा. सो व्हाट विल हैपन नाउ? द फील्ड लाइंस which is starting from north, they will attracted with this S. The field lines which are starting from north, they will attracted. Field lines which is starting from that, they will attracted. So what will happen? They will not repel. They will not repel, but they will attract by this magnetic field lines. They will absorb this magnetic field lines. That's why there is the first point. Observe करिए. On keeping this substance in the magnetic field, the material is less magnetized. हाँ, ये पॉइंट भी है कि पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि यू आर गिविंग 100 फील्ड लाइंस और वो पूरा का पूरा 100 का 100 ही इसको मिल जाए. कुछ क्या होगा, इसका अपोज कर देगा थोड़े बहुत फील्ड लाइंस का. ऐसा क्यों? क्योंकि यू कैन सी दोज लाइंस विच आर क्लोजर टू साउथ, only that field lines will attracted by that, but the field lines which are far from that south, they will not attracted by that S, because ये जितनी field lines इस S के पास में, वो सब के सब तो अंदर आ जाएंगी, लेकिन जो distance पे है, they will not attracted. इसलिए फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि जब आप इस तरह के मटेरियल को, when you will keep this kind of material into the external magnetic field, then there is the less magnetization. And look at this, in the direction of external field, in the direction of what? External field, because inside the material the direction is always from south to north. Is that clear? Okay, धन्यवाद, भगवान आप सभी का भला करें. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे ही डिपेंड करता है.
सी यू कैन सी कि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ कंपैरिजन टू आउटसाइड बहुत ही डेंस है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अंदर मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटाइजेशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि वो एक्सटर्नल के सभी फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजर inside the material and the field lines are said to be the dense comparison to the outside portion of that magnet. So the second point is that कि जो density है field lines की वो ज़्यादा होती है. And the third point is very important, sky m. Sky m is basically what? Sky m is the constant terms which is the ratio of magnetization to the intensity. I have already explained in the previous videos. That was magnetization and magnetic intensity. You can watch that videos to clear your concept. ठीक है, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये कांस्टेंट है एंड प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर स्पेशली दिस काइंड ऑफ मटेरियल, स्काई एम इज पॉजिटिव विथ लेस अमाउंट ऑफ वैल्यू. वैल्यू कम होती है लेकिन ये पॉजिटिव होता है. तो जहाँ पर भी स्काई एम पॉजिटिव आ रहा है समझ जाना, यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई दिस मटेरियल इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक मटेरियल. सो दिस वाज द पॉइंट. And the next point is, yes, it is attracted with the magnet. So when you are keeping magnet towards that kind of paramagnetic material, then it will attracted. ये उससे अट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ और ये साउथ है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ रॉड इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप किसी रॉड को जो कि जिससे किससे बना हुआ है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल से. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ रॉड अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो जो रॉड है वो खुद को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर लेती है. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है एंड आई एम कीपिंग दिस काइंड ऑफ रॉड इनटू दैट मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस रॉड विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इस तरह का सिचुएशन हुआ क्रिएट, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो ये किससे अट्रैक्ट हो जाएगा? साउथ से. ठीक है. So when we are keeping the kind of rod which is made up of paramagnetic material, then it will align itself in the parallel direction of magnetic field lines. It gets arranged parallel to the magnetic field lines. Okay, एक point और है जो कि आप लिख सकते हैं, बहुत ही important है. Sky m is inversely proportional to the temperature. For these kind of material, the susceptibility, that is magnetic susceptibility, is inversely proportional to the temperature. And the examples of this paramagnetic materials are, some examples you can write, that is calcium, sodium, aluminium, calcium, sodium. These are the best examples. One more example you can write, oxygen at STP, standard temperature pressure. So these are the best examples for that. I hope कि आपको ये पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आप ये पॉइंट्स लिखते हैं तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटने वाले. 100% आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, हमारी गारंटी है. यस. तो चलिए, पहला पॉइंट था कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसे देते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन लेस होगा और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सभी फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करने के लिए साउथ की तरह और इस साइड का क्या होता है? नॉर्थ की तरह बिहेव करता है. सेकेंड पॉइंट वॉज the field lines are very dense inside the material comparison to the outside portion of that material. Number 3, इसका sky m जो होता है वो पॉजिटिव होता है with less value. एंड नंबर 4, ये मैग्नेट के पास जाने से अट्रैक्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एक ऐसे रॉड को रख दें विच इज़ मेड अप ऑफ दैट kind of material which is known as paramagnetic material, then the rod gets arranged in a parallel direction of magnetic field. The next point is that its sky m is inversely proportional to the temperature, and the best examples is like aluminium, calcium, sodium and oxygen at STP. So please take a screenshot for that. Alright student, let us see the second point of this class, which is diamagnetic material.
Again, I am going to repeat all that sentence which you have learned for that paramagnetic material. How can you say that this given material is magnetic material? It is because of the arrangement of the molecules, it is because of the motion of the electrons, it is because of the spin magnetic moment as well as the orbital magnetic moment. Because जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो चलते हैं तो ही करंट प्रोड्यूस होती है और उसके वजह से अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्स इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन के चलने का दो तरीका है, एक तो स्पिन और दूसरा है ऑर्बिटल। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो है हमारे लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड देयर आर सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच नेवर एक्सेप्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑलवेज ट्राई टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोज काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड, यस, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन बिकॉज ये आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए मेमोरी कार्ड के अंदर। अगेन रट्टा मत मारो फिजिक्स को, बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, यू विल फॉल इन लव विथ इट। फील करके पढ़िए फिजिक्स को। हम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक वो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। And the diamagnetic material are those types of material which opposes the external magnetic field. अब ये क्यों करता होगा? क्योंकि इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ इनकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि ये एक्सटर्नल वाले नॉर्थ का ही सामना करने के लिए सामने नॉर्थ पोल को खड़ा कर देते हैं, like this. This one is the direction of external magnetic field from north to the south. And there is an induction of magnetic dipole moment in the material in such a way that they will opposes that. And to oppose that external magnetic field, this side will behave like a north pole. External वाले का oppose करने के लिए ये जो सिरा है, ending है material का, that will behave exactly like the north pole. So what will happen when this field lines which is very far, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ढैन टैडन करके वो आगे चली जाएगी। जो दूसरी लाइन है सपोज वो भी थोड़ी सी इससे डिस्टेंस पे ढैन टैडन करके आगे चली जाएगी, यस, ढैन टैडन। और ये जो थर्ड फील्ड लाइन्स है, यू कैन सी दीज फील्ड लाइन्स इज इन फ्रंट ऑफ दैट अपोजिशन फैक्टर, इसके सामने ही है। सो इट गेट्स रिपेल्ड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्थ। तो ये ऐसे जा करके ढैन हो जाएगा, इट विल टिल्टेड, थोड़ा सा मुड़ जाएगा और ये भी उसका सामना करके फिर नीचे से चला जाएगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर कीपिंग दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल into the external magnetic field, then there is not a magnetization. Magnetization तो हुआ नहीं। अगर magnetization हुआ भी तो you can see less magnetized, ये भी less magnetized है। यहाँ पे भी magnetization जो होगा वो काफ़ी कम होगा और मैग्नेटाइजेशन अगर कम है तो इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइंस है इसके अंदर वो कम है कि ज़्यादा है। ऑब्वियसली फील्ड लाइंस इज़ वेरी लेस बिकॉज इसमें जो था वो फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा थे बिकॉज उसका क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेस मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यू कैन सी कि यहाँ पे नॉर्थ से साउथ ऐसा है और अंदर साउथ से नॉर्थ। एक्चुअली होता क्या है कि हम मटेरियल के अंदर जब जाते हैं ना तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज इट ऑलवेज क्रिएट्स अ क्लोज लूप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन एक्सटर्नल। बट इंटरनली कहाँ डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ है। तो इसका जो साउथ से नॉर्थ है वो ऐसा है और एक्सटर्नल वाले का ऐसा है। तो मैग्नेटाइजेशन मैंने लिखा है लेस, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ, होता है। कैसे होता है? इनिशियली सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से सेट होंगे कि उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था। फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग। मैग्नेटाइजेशन हुआ बट जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो इस तरह से हुआ कि एक्सटर्नली जब आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडमली सेट थे तब तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था भाई, ठीक है। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नली दिया तो उसके जो डाइपोल मोमेंट बने थे विच वॉज इन अ रैंडम वे, नाउ दे आर ट्राइंग टू बिकम पैरेलल इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड। बट वो पैरेलल बनते बनते अपोजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं। बट इसके कंपैरिजन में ये जो था दैट वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसमें भी यही था, रैंडम ही थे स्टार्टिंग में। बट आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर ट्राइंग टू get parallel into the direction of magnetic field, and because of that they found their self कि वो कहाँ पर हो गए, पैरेलल हो गए। लेकिन इसमें पैरेलल नहीं होता, ये अपोजिट हो जाता है। पैरेलल इसमें भी हुआ
और इसमें क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारे पॉइंट लिखे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें है इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि फील्ड लाइंस इसमें बहुत ही कम है, देख सकते हैं फील्ड लाइंस कम है क्योंकि अपोजिशन हो रहा है। Third point is completely different. Sky M is negative. Practically, it is found that sky M is negative for these kind of material with a small value. Then the next one is repelled by a magnet. Clearly आप समझ सकते हैं यार, come on, यहाँ पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, they will repel. फिर है रॉड को अगर आप रख देते हैं then it gets arranged perpendicular in the external magnetic field. सीधी सी बात है कि अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, रॉड को आपने ऐसे रखा तो ये रॉड सीधा ऐसे हो जाएगा। They will trying to get in the parallel direction, arranged in a parallel direction because of that repulsion between north as well as north. Okay, अब इसका जो sky M है उसमें ज़्यादा changes नहीं होता according to the temperature. टेम्परेचर के साथ इसमें लेस अमाउंट का चेंज होता है, इसलिए इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं लिखा गया है। एंड द एग्जाम्पल्स फॉर दीज वन इज, बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, water, and the next one is bismuth. These are the best examples of these diamagnetic materials. So फटाफट रिकॉल करते हैं, diamagnetic material वो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, अपोज करता है। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटाइजेशन इस तरह से होता है कि वो एक्सटर्नल वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है। थर्ड, इसमें लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। फोर्थ है इसका स्काई एम नेगेटिव होता है। रॉड को रखते हैं विच इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल, देन इट विल अरेंज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और फिर इसका जो स्काई एम है, देयर इज नॉट मच मोर चेंजेस इन द स्काई एम विद चेंज इन द टेम्परेचर। द बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, बिस्मथ, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, सो ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड है इन सभी का पिताजी, पप्पा, जिसको हम कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य। The third one is the ferromagnetic material, as I have already explained when I was taking the lecture of galvanometer, why we were using the soft iron core between the stationary north as well as south when I was explaining the construction of galvanometer. जब हम गैल्वेनोमीटर समझा रहे थे तो आपको बताया गया था कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो सॉफ्ट आयरन कोर बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। जरा फिर से सोचिए, पैरामैग्नेटिक वो है जो एक्सेप्ट करता है, डायमैग्नेटिक वो है जो रिजेक्ट करता है। किसको? हमको, आपको नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और जो फेरामैग्नेटिक है वो इन सभी का पिताजी है, वो जरा सी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिजेक्ट नहीं करता, 100% एक्सेप्ट कर लेता है ऑल द फील्ड लाइंस। So these are those types of magnetic field lines which accepts all these are those types of magnetic materials which accepts all the external magnetic field lines when we are keeping this kind of substance into the external magnetic field. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जिसकी वजह से ये सभी फील्ड लाइंस को सेट कर लेता है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में देयर आर पर्टिकुलर रीजन इन विच ऑल द फील्ड लाइंस आर अरेंज्ड ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डिपार्टमेंट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, और उस डिपार्टमेंट में मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट होता है। जैसे ये एक रीजन है, ये एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन दिस वे, फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक डिपार्टमेंट की हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि ये एक जैसा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। सो व्हाट विल हैपन व्हेन आई am giving some external magnetic field to the paramagnetic material as well as ferromagnetic material, तो कौन बड़े जल्दी सेट हो जाएगा, पैरा या फिर फेरा? एग्जैक्टली फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में सेट है, भले इधर तो इधर, बट सब सेट है। तो व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट इट, कम ऑन, इमेजिन, कैन यू इमेजिन व्हेन यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू द फेरोमैग्नेटिक, तो जो इधर थे they will try to align itself into the direction of magnetic field, जो ऐसे हैं again they will try to align itself, और ये जो ऐसे हैं वो सबके सब एक साथ इधर हो जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर उनका डायरेक्शन एक जैसा है। एट द सेम टाइम फॉर दैट पैरामैग्नेटिक, इसमें एक का इधर जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक का इधर जा रहा है,
एक का इधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है. There is not a such type of region, such type of department in the case of paramagnetic material. That's why it is the Pappa, Ganpati Bappa of that paramagnetic material. And these kind of particular region in which we found all these magnetic dipole moments are arranged in such a way that their direction are in the same direction, that is called domain. ये जो region है इसे कहा जाता है domain. And बच्चा party, you should remember, in one domain there is 10 power 11 molecules. यार एक डोमेन के अंदर 10 पावर 11 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ऐसे तो न जाने कितने डोमेन्स होते होंगे इस तरह के मटेरियल में. शायद यही रीज़न है, बिगेस्ट रीज़न है कि दिस इज द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल कंपैरिजन टू दीज. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है, मैग्नेटाइजेशन तो होगा इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, मोर मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जब फील्ड लाइन सब पास में आ जाएंगे तो फील्ड लाइन्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइन सब अट्रैक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्काई एम पॉजिटिव होता है विथ मोर वैल्यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट वर्थी पॉइंट. इसका स्काई एम पॉजिटिव था विथ लेस वैल्यू, स्मॉल वैल्यू. स्काई एम नेगेटिव है और इसका स्काई एम क्या है, पॉजिटिव है. नेक्स्ट पॉइंट है 100% इट विल अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट. और मैंने यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. एंड व्हेन यू आर कीपिंग the rod which is made up of ferromagnetic material, then it gets parallel, because यहाँ पे भी वही रीज़न आपको एक्सप्लेन किया है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इसका जो स्काई एम है टेम्परेचर के साथ बड़े ही अजीब तरीके से चेंज होता है कॉम्प्लेक्स वे में, और वो जो कॉम्प्लेक्स वे की बेसिस पे चेंजेस आएगा वी विल सी ऑन द अपकमिंग वीडियोज ऑफ दिस क्लास विच इज़ हिस्टेरेसिस ग्राफ, अ very important topic of this chapter, hysteresis graph. So wait for that. तो इसका स्काई एम टेम्परेचर के साथ कॉम्प्लेक्स वे में चेंज होता है. इसका जो स्काई एम था वो इन्वर्सली था. इसका जो स्काई एम है उसमें ज़्यादा चेंजेस टेम्परेचर के साथ नहीं होते, और इसका स्काई एम कॉम्प्लेक्स वे में होता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. दीज आर द बेस्ट एग्जांपल. ओके, सो ये है आज का हमारा क्लास, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इट इज़ डन फ्रॉम टुडेज क्लास. अच्छा, जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आप सभी को पूछ रहा हूँ, एंड प्लीज़ उसका आंसर दीजिए कमेंट करके, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ पर भी आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट यू कैन आस्क. तो क्वेश्चन ये है कि what will happen to the paramagnetic material as well as the diamagnetic material when we are giving non-uniform magnetic field, both of this. दोनों को हम non-uniform magnetic field देते हैं तो क्या होगा. ये जो diamagnetic material है या जो paramagnetic material है, ये non-uniform में कैसा बिहेव करेगा. क्या ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागना की शुरू करता है, या फिर कम मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये चलने की शुरुआत करता है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. और ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके दें. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मज़ा आएगा. अब नेक्स्ट वीडियो है, इट इज़ ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस. 100% आई विल अपलोड दिस वीडियो टुमारो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो. आपके कमेंट और प्यार मुझे लगातार मिल रहे हैं, सो आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम.